Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB, and in this video we will be continuing with our CAT level series, and in this particular video we will see some fillers, right? And when we talk about this topic, fillers, in your exam we know that fillers can be asked in different ways. Now what do I mean when I say they can be asked in different ways? एक आपका होता है जो आपको पैटर्न पता होना चाहिए. There are many patterns. एक आपको होना चाहिए कि अगर वो आपसे फिलर्स पूछ रहे हैं, what do they want to judge, what are they actually asking, what is the aspect that they want to test, right? तो ये जो different aspects हैं, या तो आपका grammar टेस्ट कर सकते हैं, they can either test your grammar by giving you fillers in your exam, or they can test your vocabulary, right? Or they can test if you know idioms, phrasal verbs, etc., right? And phrasal verbs as well, phrases, or right, phrasal verbs also. And lastly they can check that if you have an understanding of the context, right, that how a sentence is constructed, what is the correct way to construct a sentence, if that context can, if you are good at judging that context, this can also be asked, right? But majorly your emphasis is on either grammar, vocabulary, or idioms, right? Today in this video we will see some fillers based on vocabulary, and now I will show you one pattern, and that does not mean that the vocabulary fillers can only be asked in that pattern. Then there are n number of patterns using which vocabulary based questions or grammar based questions or idiom based questions can be asked, right? So pattern as well as the types what can be asked is knowing all these things is important, right? So we'll be seeing our vocabulary based fillers. So friends, first question देखते हैं. ये कह रहा है the writings of the philosopher Plato have been analyzed dash and interpreted in countless ways over the past 2 millennia. ठीक है, अब कॉलम 1 में चेक करोगे. ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है, have been analyzed dash and interpreted. तो इससे मिलता जुलता वर्ड जो है वो क्या है, वो critiqued है एक्चुअली, क्योंकि critiqued में कह रहे हैं कि इनकी जो राइटिंग्स हैं उनको एनालाइज किया गया है, और क्या किया गया है, और उसको केयरफुली, एक्चुअली क्रिटिक का मतलब केयरफुली एनालाइज करना, या इस तरह से ही होता है, केयरफुली एनालाइज करना, पूरी डिटेल्स उसकी निकालना, ध्यान से देखना. ठीक है, सो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड आएगा वो क्रिटिक्ड आएगा, उनको एनालाइज किया गया, क्रिटिक्ड किया गया, और बहुत तरह से उसको इंटरप्रेट किया गया पास्ट 2 मिलेनिया में. However, his Republic still stands out as an intellectual dash of Greek socio-political commentary and a prescriptive utopian vehicle. Utopian का मतलब क्या होता है, एक जो good world होता है, ideal good world, पर वो exist नहीं करता है. Ideal good world which does not exist, right? Which does not exist. तो ठीक है, इसका याद रखना. यूटोपिया काफ़ी सारा न्यूज़ में बोला जाता है और काफ़ी डिबेट्स में बोला जाता है. इट्स अ गुड वर्ड, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, क्लैमर का मतलब होता है एक लाउड नॉइस, राइट? डिराइड का मतलब होता है मॉक करना या रिडिक्यूल करना, मजाक उड़ाना. कॉन्फ्लिग्रेशन का मतलब होता है एक वाइल्ड फायर. हॉलमार्क का मतलब होता है एक स्टैम्प ऑफ प्योरिटी. ठीक है, जैसे कि बोलते हैं शी इज़ अ हॉलमार्क ऑफ परफेक्शन, तो मतलब वो एक स्टैम्प है कि भाई परफेक्शन जो है वो, ये जो लेडी है जिसकी बात हो रही है वो है जो बताता है कि हाँ दिस परफेक्शन क्या होता है, राइट? प्लेटोनिक क्या होता है? प्लेटोनिक मीन्स जब आपका रिलेशनशिप के लिए बोला जाता है, इंटेलेक्चुअल लेवल का जब रिलेशनशिप होता है, कोई फिजिकल अटैचमेंट नहीं रहता है, सो इंटेलेक्चुअल लेवल रिलेशनशिप को बोलते हैं प्लेटोनिक रिलेशनशिप. ठीक है, सो अब आपको सारे वर्ड्स की मीनिंग पता है. तो यहाँ क्या देखिए, क्योंकि यहाँ इंटेलेक्चुअल लिखा है इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर कि यहाँ पे भी इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप ही आएगा, यानी कि प्लेटोनिक. ऐसा नहीं है. सेंटेंस को समझो. ठीक है, यहाँ क्या बोल रहे हैं, हाउएवर हिज रिपब्लिक स्टिल स्टैंड्स आउट. ठीक है, जो उसका रिपब्लिक है वो खुद स्टैंड आउट करता है, यानी कि एकदम अलग से दिखता है, एज एन इंटेलेक्चुअल डैश ऑफ ग्रीक सोशो पॉलिटिकल. एक चीज जैसे मैंने परफेक्शन बोला था, तो ऐसे ही एक चीज, किसी एक कैरेक्टरिस्टिक का वो क्या है, एक हॉलमार्क है या स्टैम्प है.
ऐसा बोल रहे हैं ये, ठीक है। तो वो एक स्टैंड आउट करता है एज अ हॉलमार्क ऑफ एज एन इंटेलेक्चुअल हॉलमार्क ऑफ ग्रीक सोशो पॉलिटिकल कॉमेंट्री एंड सो, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो है CE ऑप्शन बी, राइट, यहाँ पर दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ फ्रेंड्स, आपको अगर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फिलर्स आते हैं, तो आपको ऐसे सॉल्व करने हैं कि आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी वो सॉल्व हो पाएंगे, राइट। और हो सकता है डबल फिलर्स, ट्रिपल फिलर्स, किसी में भी दे कैन आस्क यू वोकैबुलरी बेस्ड, ओके। एक और देखते हैं कि बोल रहा है A deal between the world's most populous democracies would be a welcome victory for Trump, whose administration has made little dash negotiating an end to its dash trade war with China, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड वॉर जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है, तो यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे एक एडजेक्टिव आएगा क्योंकि डिस्क्राइब किया गया है, राइट। अब डीबंक करना क्या होता है, व्हाट इज डीबंक, पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। डीबंक एक वर्ब है और डीबंक का मतलब होता है कि कोई सपोज कोई थ्योरी चली आ रही है, उसको हमने क्वॉश कर दिया है, वो थ्योरी जो है डीबंक हो गई है। जैसे कि लोग कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट कम होता है, ये एक थ्योरी है, ठीक है। अब अगर हमने बोल दिया, किसी ने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी और उसका वेट लॉस नहीं हुआ, या कोई ऐसी थ्योरी आ गई जो बता रही है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट कम नहीं होता है, कुछ और चीज़ें हैं जिनको मिलाकर वेट कम हो रहा है, तो मतलब कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो थ्योरी है उसको आपने डीबंक कर दिया है, ठीक है, उसको आपने डीबंक कर दिया है या क्वॉश कर दिया है, ठीक है। अब प्रोलॉन्ग का मतलब क्या है, तो ये क्या है, ये वर्ब है फर्स्टली। अब प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा चलता हुआ, लॉन्ग गोइंग या गोइंग ऑन, ठीक है, जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है उसको आप प्रोलॉन्ग बोलोगे, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। रेजिमेन क्या होता है, इज इट अ व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस, आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ नाउन, ठीक है। और एक होता है रेजीम, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। रेजीम क्या होता है, रेजीम इज द रूल, ओके, जैसे कि अंडर हिज रेजीम ही डिड सो एंड सो, राइट। जैसे कोई किंग है, उसने अपनी रेजीम में ये लॉज लाए या ये चीज़ें दान करी, कुछ भी इस तरह से अपने रेजीम में इन्होंने अच्छा काम किया, वटेवर, ठीक है। रेजिमेंट क्या होता है, रेजिमेंट होता है जब हम बोलते हैं एक्सरसाइज का आपका रेजिमेंट होता है, सो दिस इज द रूटीन, ये एक नाउन है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव आना है, वी नो दिस वन एडजेक्टिव दैट इज प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे, अब देखो आपको एकदम सही भी लगेगा, इट्स प्रोलॉन्ग्ड ट्रेड वॉर विद चाइना, मतलब जो बहुत लंबा चलता आ रहा है ट्रेड वॉर चाइना के साथ, उसमें यहाँ पे हैज मेड लिटिल, क्या चीज, लिटिल क्या, या तो वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात हो रहे हैं। एम्बेजल का मतलब क्या होता है, चोरी, स्टील करना, जिनको भी जेल होती है, जैसे बात करते हैं कि ब्लैक मनी या कुछ भी चीज़ चुरा ली, तो क्या कहते हैं कि मनी एम्बेजल करा, एम्बेजलमेंट के केस में कोई जेल गया है, ठीक है। तो इस तरह से एम्बेजलमेंट का या एम्बेजल का यूज़ होता है, ठीक है। कॉन्ट्रावीन क्या होता है, कॉन्ट्रावीन मतलब कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट। और हेडवे क्या होता है, हेडवे मतलब प्रोग्रेस, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है, कॉन्ट्रावीन इज, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ क्या है, आपको पता होना, वर्ब, राइट। पर यहाँ पर देखिए हैज़ मेड लिटिल वॉट, हैज़ मेड, मैंने आपको ये ट्रिक क्लास में तो मैं ये प्रैक्टिस कराती रहती हूँ, अगर आपको नहीं पता चल रहा है यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आना है, राइट। पार्ट ऑफ स्पीच आप यहाँ पे जो भी आपका वर्ड है, सपोज आप यहाँ पे हेडवे भर के देखो, आपको नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे हेडवे सही है कि गलत है, कि या पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, तो इसमें कोई ऐसा वर्ड देखो जिसमें आपको लग रहा है आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता होगा, जैसे कि हैज़ मेड लिटिल डैश नेगोशिएटिंग, इतना आप पार्ट लो और यहाँ पर डैश पे भरते जाओ, ठीक है। हैज़ मेड लिटिल प्रोग्रेस इन नेगोशिएटिंग, क्या आप श्योर हो कि प्रोग्रेस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है कि वर्ब है, नहीं हो तो कोई और वर्ड सोचो, मनी, हैज़ मेड लिटिल मनी नेगोशिएटिंग दिस, क्या आप श्योर हो कि मनी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, मनी क्या है, थिंग है, इट इज़ अ नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन आएगा, ये आप सर्टेन है। अब आप देखिए कि यहाँ
पर से इन वर्ड्स में से नाउन कौन सा है उसको आप फिट करेंगे। अगर दो हैं तो उन दो में से कोई एक आएगा, राइट, बट बाकी पार्ट ऑफ स्पीच हट जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया प्रोसेस। इस ब्लैंक को आप तब तक यहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड्स ट्राई करके डालते रहेंगे, रैंडम वर्ड्स, राइट, जो कि जिनका पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता है और यहाँ पे वो फिट बैठ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मनी का पार्ट ऑफ स्पीच, मनी यहाँ पे फिट बैठ रहा है और आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी पता होगा, बिकॉज नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है, ये हमें पता होता है, ठीक है। सो इट इज ईजी। वर्ब के कुछ एक्शंस होते हैं, डांस, सिंग, ये सब होता है। तो अगर आप यहाँ पे डांस लिखोगे, हैज मेड लिटिल डांस नेगोशिएटिंग, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, उसने डांस किया, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर एक नाउन आना चाहिए, सो वर्ब इज नॉट फिटिंग, है ना। तो आप इजी वो वाले पार्ट ऑफ स्पीच डालो जो आपको पता है, राइट, और उसके बाद आप आकर जो है अपने कंपेयर करो कि वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और इस कॉलम में जो वर्ड्स हैं उनके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नैरो डाउन हो जाते हैं आपके ऑप्शंस, राइट। सो हैज मेड लिटिल, व्हाट, अब नाउन आना चाहिए। एम्बेजल करना, स्टील करना, तो ये क्या है, अगेन इट इज अ वर्ब, कि एम्बेजल करा, स्टील करा, एक्शन करा, वर्ब है, ये भी नहीं आ सकता। हेडवे मतलब कि प्रोग्रेस, ओके। यहाँ पे है कि यहाँ पर जो भी बात हुई थी, डील हुई थी, उसने लिटिल हेडवे बनाया है, यानी लिटिल प्रोग्रेस ली है, वाइल नेगोशिएटिंग एन एंड टू इट्स, और वो जो प्रोलॉन्ग्ड ट्रेड वॉर जो नेगोशिएट कर रहे थे चाइना के साथ अपना, वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड था, ऐसा उसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। सो वो प्रोलॉन्ग्ड ट्रेड वॉर को नेगोशिएट करते हुए जो हेडवे था या प्रोग्रेस थी वो बहुत कम बनी है प्रोग्रेस, ये बात हो रही है, ठीक है। सो हमारा ए हेडवे और यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड ई, दैट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ई, ओके। एक और देखते हैं, द अक्यूज्ड हु हैव बीन अरेस्टेड एंड देयर डैश वर allegedly collecting funds in preparation of carrying out attacks in India with the dash of establishing an Islamic rule। इसका मतलब क्या होता है, जो भी आपके कंपेनियंस होते हैं, आपके साथ के कंपेनियंस। डिवाइसिव मतलब जो कि आपका डिवाइसिव पॉलिसीज होती हैं, यानी कि अलग करने वाली, डिवाइडिंग, ओके। ड्यूरेस का मतलब क्या होता है, ड्यूरेस इज थ्रेट, ठीक है। और ये वर्ड ड्यूरेस मैंने पर्सनली सुना था इंडियन मैच मेकिंग, जो आपकी सीरीज आती है उसमें, ठीक है। तो आप भी देख सकते हैं, जो भी कोई आपकी सीरीज आती हैं उसमें से आप वर्ड्स बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम है और आपको कुछ देखने का मन करता है ऐसे ही थोड़ा लाइट होने के लिए, तो इंग्लिश वाली मूवीज, सीरीज ऐसे देखना, तो आपका वोकैबुलरी भी बिल्ड होगी, राइट। सीज्ड का मतलब क्या होता है, एक होता है सीज विच इज, सॉरी अबाउट दिस, एक सीज होता है जो होता है हमारा, जस्ट अ मोमेंट, CEASE, सीज, राइट, वो क्या होता है, CEASE, दिस सीज इज स्टॉप, सीज टू एग्जिस्ट, राइट, ऐसे बोलते हैं ना। और ये सीज क्या होता है, कॉन्फिस्केट, राइट। इंटेंशन मतलब आपका जो इंटेंट है, एंड एक्सटॉल मतलब कि प्रेज, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आपको इनकी मीनिंग्स पता है, अब आप फिट कीजिए। द अक्यूज्ड हु हैव बीन अरेस्टेड एंड देयर, उनके और क्या होंगे, क्या उनके थ्रेट होंगे, उनकी डिवाइडिंग होगा, कि उनके कंपेनियंस होंगे, उनके कंपेनियंस होंगे, राइट। सो ए यहाँ पर आएगा। लेट्स सी ए के कौन से ऑप्शंस हैं, ये दो ऑप्शंस हैं, ई और डी हमें पता होना चाहिए। ई क्या है, इंटेंशन, राइट, और डी क्या है, सीज, विद द सीज, यानी कि कॉन्फिस्केट ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन इस्लामिक रूल, दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, राइट, विद एन इंटेंशन, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ई आना चाहिए आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए मूविंग अहेड, यहाँ बोला है, amid the late evening glitter of downtown Shanghai, dash by the shimmer of Huangpong River that dash flows through the city, the Indian consulate last month pulled some of the big names in the IT space, okay। अब देखिए, मैं इसमें आपको मीनिंग्स बताऊंगी सबके, और आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि करेक्ट यहाँ पे कॉम्बिनेशन कौन सा है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज द आंसर, राइट। सो स्टॉलवर्ट क्या होता है, इसका मतलब someone who is very hard working and loyal, okay। feral क्या होता है, something someone who is untrained, right। amplified, increased,
right? Languidly मतलब in a relaxed way, right? What is something that is very chirpy. Virile, something that is very masculine and has a potential to have offsprings. Masculine, right? So these are the meanings of these words, and you will tell me the correct combination from the given options, right? This is all for this video, friends. I hope you liked it. Please practice vocabulary. You will know the importance of vocabulary once you read editorials, and once you see that I saw some season maybe and I learned vocabulary from there, and that is why I'm able to understand this particular article, right? Or it may be the other way around, that you're learning through the articles and then you are you are realizing that you have learned something new while you are watching something interesting on maybe interesting or something to just ease you on any of the platforms, right? So this is all for the video, friends. Focus on increasing your vocabulary, and subscribe to our channel if you already have not. Do press the bell icon.